Hello all online learners. Welcome to the online class of English grammar. Today we are going to learn about the most common topic of English grammar. What is that? It is a noun. We are going to learn about the topic nouns. Okay. So let's start learning about the first chapter of English grammar, which is noun or the naming words. Okay students, so let's start. We are going to learn about the nouns. As you can see in the image, nouns, the spelling of the nouns is N-O-U-N-S. You can see three exact images. First image is of book, second image is of an apple, and the third image is of a mobile phone. Now you can easily guess what is a noun. Yes, let's start the topic. Now, we can start learning about the nouns from our home since we are staying for a long time at our homes. So let's start learning from the home itself. Okay? Everything around us has a name. As you all can see, while watching the videos, you can see around your house, you can see a kitchen, you can see a hanging clock, you can see a television, you can see a refrigerator, we can see a AC, lots of things you can see at your home only. But let's see what are these called. आप लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा कि हम लोग सब चीज को देखते तो हैं, लेकिन उनको बोला क्या जाता है, उनका नाम क्या है. So let's start from the kitchen. Yes, you can see a basket full of fruits, apples, bananas, bread, chocolates. Yes, you can see all these things are nouns. What are these? These are the names of things. What are these called? Names of things. Now, what are the names of things? Fruits. Yes, all the fruits. We have lots of fruits. Yes, we have lots of fruits. Apples, bananas, guavas, chikus, kiwi. But all the things have given the name. Apples, bananas. All these names are called the nouns. Yes, nouns are divided into 4 categories. Okay, so first of all, we are going to learn about the category first, which is things. Okay, so things में हमने क्या-क्या देखा? Apples, bananas, bread and chocolate. We eat these things on a regular basis. But क्या हमें पता था कि इन सबको nouns बोला जाता है? Yes, so you have learned today a new thing that हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज देखते हैं, the thing which is non-living, the thing जिसमें living नहीं है, जिसमें कोई जान नहीं है, but thing still they exist. Yes, these are called the nouns and they come under the category things. Now let's see further. Move on to your study table. Table, yes, chair, you see these things, your bed, the flowers, the tree, the shoes. Yes, you see these things around your bed. आपके बेडरूम में ये सब चीजें आप लोग रोज देखते हो, तो कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये सब चीज को क्या बोला जाता है? Yes, these are the names of a nouns. फ्लावर्स हम रोज देखते हैं, है ना? फ्लावर्स हम देखते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, रोज, लोटस, लिली, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. All these are given a name. इन सब नेम्स को हम लोग बोलते हैं nouns. Again, ट्री, हम लोग ट्रीज भी देखते हैं ना बहुत सारे. नेक्स्ट, टेबल, चेयर, बेड, शूज, all these things are the names of a thing and all these are called the nouns. Let's move further. All the names of the things are called the nouns. Again, you have school bags, you have books, you have pencils, all these things you use for your regular studies. Yes, स्कूल बैग हम लोग रोज लेते थे, तो हमें पता था कि इसको नाउन बोला जाता है. Yes, these are called the nouns. Books, pencils, eraser, all these things you use in your day-to-day life are called the nouns and all these things come in the category of things. Now, let's move further. Names of people. You all can see lots of people around yours. हम लोग रोज अलग अलग पर्सन से मीट करते हैं, है ना? हम लोग मम्मी से मीट करते हैं, फादर, हम लोग घर में कौन कौन से फैमिली मेंबर्स होते हैं? दे आर फादर, मदर, अवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हम लोग ये सब से रोज मिलते हैं.
और हम जब बाहर जाते हैं तब भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपने टीचर्स से भी मिलते हैं, राइट? यस। लेकिन हम हमारे घर में जब कोई लेटर्स आता है तो कौन आता है? पोस्टमैन। रास्ते पे जो ट्रैफिक पुलिस गाइड करता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। तो लॉट्स ऑफ पीपल वी सी अराउंड अस। तो क्या आपने सोचा है कि इन सबको क्या बोला जाता है? यस, दीज और all are the names of person, and yes, people is one of the category of nouns. Yes, so हमने second category क्या सीखी? Names of people. Now let's see what are the different types of people around us. Girl, man, a doctor. Yes, all these things, all these persons comes in the category of people. Again, the person who is standing with the blue shirt and the blue pant, you can guess what these and what is this? Who is this person? Yes, this is a policeman. The policeman who guide us. Okay. So we have seen the second category. Lots of persons: man, girl, boy, policeman, doctor, postman. All these persons comes in the category of people category. Now let's move further to the third category, which is the names of एनिमल्स. एनिमल्स भी हम रोज देखते हैं ना. जू हम जाते हैं विजिट करने तो हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी द एनिमल्स ओवर हियर. नेम्स ऑफ एनिमल्स. What kind of animals here are? Yes, dog, a cat, a pig. Yes, we have seen 3 animals over here, but yet lots of animals we see as dog, cat, pig. Pig, okay, elephant, tiger, eagle, vulture. Now, most important thing here is कि the birds, the sea animals, the wild animals, all these things comes in the animal category. आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि birds की अलग कैटेगरी है. Birds are also included in the animal category. Eagle, crow, vulture, pigeon, all these, sparrow, all these comes in the animals category. Okay, so एनिमल्स भी हम बहुत सारे देखते थे, तो अब तक हमें नहीं पता था कि एनिमल्स को क्या बोला जाता है. हमें उनके नाम पता थे पर इंग्लिश ग्रामर में हमें नहीं पता था ना कि उसको क्या बोला जाता है. यस, नाउ यू पीपल नो कि अब उनको क्या बोला जाता है. दे ऑल कम इन दी नाउन्स कैटेगरी, मतलब नेमिंग वर्ड. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द फोर्थ कैटेगरी, विच इज द नेम्स ऑफ प्लेसेस. यस, स्कूल, होम, अमेरिका. यस, ऑल दी प्लेसेस यू विजिट. हम लोग रोज बहुत सारी जगह में जाते हैं. जैसे कि आप जब स्कूल खुले तो आप स्कूल आते थे ना. नेक्स्ट हम लोग शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं. यस, शॉपिंग मॉल्स. हम लोग बुक्स रीड करने कहाँ जाते हैं. लाइब्रेरी. हम लोग भगवान की पूजा करने कहाँ जाते हैं. यस, इन दी टेम्पल्स. ओके, सो ऑल दी प्लेसेस वेयर यू पर्सनली गो, आप खुद जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी जाते हैं उन सारी चीज़ों को बोला जाता है प्लेसेस टू विजिट. ऑल द नेम्स ऑफ द प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन्स. जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल भी एक नाउन है. हम घर में रहते हैं, हाउस, हमारा हाउस भी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाउस, इज ऑल्सो कॉल्ड द noun which is comes in the place category. Next, America, India, all these are the names of the countries. Okay, so names of the countries, names of the city, names of the areas where you live, all these things comes in the place category. For example, where do you live? Yes, for example, let's take you stay in Surat. You stay in Surat. Now Surat word is the place, name of the place, name of the city. Okay, so city, name of the city, Surat is called a noun. Again, where does this Surat are in? Surat is in Gujarat. Okay, so Gujarat is a state. So Gujarat is a noun which comes in the place category. Now move further. Where is Gujarat? Gujarat is in India. Yes, so India is our country. India is also a name which comes in the place category. Now अब इंडिया कहाँ है? एशिया में. Yes, Asia. Again, Asia is a place in the earth, or earth is in the solar system. Okay, so that's a big chain. All these places comes in the category of noun in the fourth category, which is the place category. Okay, so we have till learned the 4 categories: things, animals, people and the places. All these are called the
nouns. What are nouns? The nouns are the names of people, animals, places and things. Okay? So अभी तक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि nouns होते क्या है. अभी हम आगे चलते हैं. Move on to next. Let's see the perfect definition of a noun. A noun is a naming word. Yes, आप लोगों के चैप्टर में शायद लिखा होगा नेमिंग वर्ड. तो आप प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने तो नाउन्स पढ़ाया था, ये नेमिंग वर्ड क्या है. गाइस, नेमिंग वर्ड and the noun both are same. Noun, what is the definition of noun? Noun is a name of something, right? इसीलिए उसे नेमिंग वर्ड भी बोला जाता है. ओके, अभी नेम किसका किसका नेम? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और अ बर्ड. यस, मैंने आपको बताया था ना कि बर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल कैटेगरी. आप ऐसे मत बोलना मैम बर्ड को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे. यस, बर्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल कैटेगरी. ओके, सो लेट्स रिवाइज वन टाइम. यू पीपल ऑल्सो हैव टू से विथ मी. चलो हम लोग सब साथ में बोलते हैं. हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ नाउन्स? टेल मी हाउ मेनी कैटेगरीज. यस, देयर आर 4 categories. Let's name the categories. Category number 1 is person, place, thing and animal. Okay, so there are 4 categories of noun. Now let's see the naming words. A person. Yes, you can see the person is walking. A place. Yes, lots of places. देखो यहाँ पे बहुत सारे places दिए हुए. All these places comes in the category of person, place. Next is animals. Yes, we can visit. You people have visited the zoo. हम लोग zoo में बहुत सारे animals देखते हैं. Next is things. So a naming word is a words which have names of person, place, animals and things. Okay, students. Now move further to the first category is of person. Now you can see lots of person over here, right? The first persons is our mother and daughter. Yes, आपकी मम्मी, okay, आपकी बहन, sisters, आपके भाई, brothers, आपके father, आपके grandfather, आपकी grandmother, आपके friends. All these comes in the person category. कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये लोग सब लोग person कैटेगरी में आता है. ओके, चलो सेकेंड इमेज किसका दिख रहा है आप सबको? यस, द पर्सन हु इज सेइंग हेलो टू यू ऑल. यस, द पर्सन इज, यस, ही इज अ डॉक्टर. डॉक्टर क्या पूछ रहा है आपको? और सब ठीक है ना? यस, सो डॉक्टर ऑल्सो कम्स इन द person category. Lots of person comes in the person category, but I have selected few. Okay, so doctor, the person who treats us, who checks us and who makes us fit and fine. Okay, so doctor comes in the person category. Next move on to कौन है ये? देखो हाथ में स्केल, साइड में बुक. Yes, she is a teacher. The person who teaches you, as if me. Yes, so the person who teaches you is a teacher. Teacher will also come in the person category. Next यहाँ पे देखो कोई person है जो बैग में से कुछ लेटर निकाल रहा है और कुछ रेड बॉक्स में डाल रहा है. Who is that person? Any guesses? Yes, that person is a postman. Postman क्या काम करता है? लेटर्स को रेड बॉक्स में डालता है और रेड बॉक्स से फिर हमारे घर पे मैसेजेस पहुंचाता है. यस, हमारे घर पे कुरियर आता है, हमारे घर पे पार्सल आता है. ऑल दीज ये सब डिलीवरी कौन करता है? यस, दिस पर्सन इज कॉल्ड पोस्टमैन. द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू अस एट अवर डोर स्टेप. राइट, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. द पर्सन हु इज सेइंग हाय एंड फिटिंग हिज कैप. हु इज दैट पर्सन? यस, that person is a policeman. The person who takes care of us, who secures us at the roadside. कुछ भी हमारे रोड में प्रॉब्लम होती है या हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी होता है, उसका सॉल्यूशन कौन करता है? यस, policeman. Right. So the policeman is also comes in the person category. Okay. So lots of persons comes in the person category, but I have selected few. All these names of person comes in the person category. Move on to the next. Next category is place. Place मतलब जगह. सबसे पहला जगह किसका है? देखो, the place where we go to worship the God.
कौन सा प्लेस है? यस, दैट प्लेस इज कॉल्ड टेम्पल. हम लोग मंदिरों में जाते हैं ना घूमने. यस, सो टेम्पल इज ऑल्सो अ प्लेस टू वर्शिप द गॉड. नेक्स्ट देखो किसका है? जू. जू में क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ जू में विजिट करने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं. सो ये भी कोई जगह है जहाँ पे हम सब घूमने जाते हैं. दैट प्लेस, दैट जू वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन विच कम्स इन दी प्लेस कैटेगरी. थर्ड देखो किसकी फोटो है? आप सबको तो पता ही होगा. विच स्कूल? यस, हमारा गजेरा स्कूल. राइट, गजेरा उत्तरायण is our school, and the school is a place where you come to study, okay, and make your life better. So the school is a place where you come to study, also comes in the place category. Next देखो किसकी फोटो है? Yes, that's a place where you go for shopping with your parents. ओके, सो जहाँ पे हम सब चीज़ें लेने जाते हैं, हमारे घर की शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी जगह हो, मॉल हो, हम लोग सुपरमार्केट में भी जाते हैं ना रोज रोज के फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल्स लेने. ऑल दीज प्लेस वे यू गो फॉर शॉपिंग ऑल्सो इज कम्स इन दी प्लेस कैटेगरी. बीच में क्या दिख रहा है? देखो बीच में ऐसे से ब्लिंकिंग करता हुआ. यस, दिस इज अवर कंट्री इंडिया. ओके, सो इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेस. वाई? बिकॉज इंडिया में ही आप सब रहते हैं. इंडिया में गुजरात में, अगर आप गुजरात में हैं तो गुजरात में रहते हैं. गुजरात में कहाँ रहते हैं? सूरत में रहते हैं. सो सूरत इज ऑल्सो अ प्लेस. सूरत में कहाँ रहते हैं? एरिया में, जो भी आप जहाँ पे भी आप रहते हैं वो एरिया. ऑल दीज कम्स इन दी प्लेस कैटेगरी. ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम सब रहते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम पूजा करने जाते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं. All these places comes in the nouns which is called in the place category. Now move further. What are these? दिख रहा है ना सबको? Yes, these are the animals. So first image किसका है? Who will say? Yes, this is the monkey. Monkey देखो खाना खा रहा है ना, monkey. Next, which image? कौन पहचानेगा? Guess? Yes, this is the king of the jungle, lion. Lion. Next, the छोटा सा कौन है जो बाग कर रहा है? This is a dog. Next, animal with angry face. Which animal is this? Yes, this is eagle. Then big animal with a chain of family. Which animal is this? Any guesses? Animal having long trunk. Yes, these are elephant. Yes, all these animals, monkey, lion, dog, eagle, elephant, tiger, lots of animals are there. Okay, so all these animals are the name of nouns and come in the animal category. Okay, so जैसे कि मैंने आपको बताया था birds, जैसे कि यहाँ पे eagle है. Now birds are also included in the animal category. Okay, so make sure कि आप लोग को याद रहे कि birds, sea animal और लाइव इंसेक्ट्स जो भी है वो सब चीज़, वो सारे नाम, इंसेक्ट्स में हनी बी, एंड्स, ऑल दी स्पाइडर्स, ये सब भी एनिमल कैटेगरी में ही आएंगे. ओके, सो डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, आप जितने भी एनिमल्स को देखेंगे, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, सी एनिमल्स हो, all these and names of the animals will come in the animal category of the nouns. Okay, so next, the last, things. Yes, इन सबको things क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि these don't have living things, living beings. Living beings किसको बोलाता है? The person who survive here, और जो इनहेल करता है ऑक्सीजन, एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जान होती है ना, उसे हम लोग लिविंग बींग्स कहते हैं. बट ये सब चीज़ें में तो जान नहीं होती है, स्टिल वी यूज देम. यस, सो ऑल दीज थिंग्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ थिंग. द फर्स्ट इमेज किसका देखो? स्पून वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. आप लोगों को पता नहीं होगा, स्पून इज ऑल्सो अ noun and which comes in the thing category. Next is the loaf of bread. It's a bread cutting into pieces. Next is milk. देखो, milk is pouring in the glass. बहुत सारे students को milk नहीं पसंद है, but still it is healthy for life. Okay, so you should drink milk every day. A glass of milk makes you healthy. Okay, so milk comes in the thing category. अभी आप बोलोगे चीज को तो यूज कर से खाना पीना,
Yes, खाना पीना मतलब the food you eat, the drink you consume. All these are also comes in the thing category. खाना पीना में जैसे कि ब्रेड आया है, दूसरी चीज भी होती है जो हम लोग रोज के रोज खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. यस, ऑल दीज कम्स इन द थिंग्स कैटेगरी. ड्रिंक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल्क आता है, जूसेस, अलग अलग फ्रूट्स की जूसेस. यस, आप लोग बाहर जाते हो तो माजा, फ्रूटी सब पीते हो ना. ऑल दीज कम्स इन द थिंग कैटेगरी. नेक्स्ट, चेयर. देखो ऐसी चेयर है ना, ऐसे चेयर में जनरली हमारे ग्रैंडफादर्स बैठते हैं, है ना. सो ग्रैंडफादर्स जिस चेयर पे बैठते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ चेयर्स हमारे घर पे होते हैं. ऑल दीज कम इन द थिंग कैटेगरी. सो लास्ट में देखो आप सबका फेवरेट फ्रूट, यस इट्स अ मैंगो. ओके, सो मैंगो मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी हो, ऑल जिसमें कोई जान नहीं हो, द थिंग विच इज नॉट लिविंग, ऑल दीज कम्स इन द थिंग्स कैटेगरी. फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बहुत सारे फ्रूट्स आप खाते हो. वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप रोज खाते हो, है ना. सो ऑल दीज कम्स इन द थिंग्स कैटेगरी. ड्रिंक में जैसे कि मैंने आपको बताया, जूसेस, मिल्क, फ्रूटी, माजा, आप जो पीते हो, ऑल दीज कम्स इन द थिंग कैटेगरी. ओके, सो एज इफ नाउ आप सबको पता ही होगा. अब हमें चार कैटेगरी के बारे में विथ एग्जाम्पल्स आप सबको पता चल गया कि व्हाट इज अ नाउन. ओके, नाउ मूव फर्दर. लेट्स नेम दिस पिक्चर्स. नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. अभी मैं आपको फोटो बताऊंगी और आप मुझे आंसर्स देंगे. अभी तक में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ चार कैटेगरी को डिस्कस किया थे. ओके, सो नाउ इट्स योर टर्न. सो लेट्स स्टार्ट. Be ready, students. First image. Who is this person? The legend person. आप सबको पता ही होगा. What is the name? Yes, this is Sir Narendra Modi, the Prime Minister of India. Sir Narendra Modi. Okay. Now, कोई मुझे बताएगा कि नरेंद्र मोदी किस कैटेगरी में आते हैं? He is a person. Yes. So Narendra Modi will come in the person category. Very good, students. Move on to the next. Can you guess which animal is this? Yes, this is snake. Okay, so this animal is called snake and this will come in the animal category. Now move further. Which is the place? Can you guess anyone? Yes, this is the Disneyland. आप सबका हॉट फेवरेट जगह है. आप सब लोग once in a lifetime सोचोगे हाँ मुझे प्लीज डिज्नीलैंड तो जाना ही है विथ माई फैमिली एंड द फ्रेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो यस दिस इज अ डिज्नीलैंड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड डिज्नीलैंड विल कम इन द प्लेस कैटेगरी. नेक्स्ट, ये कौन सी चीज आ गई आप सबको? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट लाइक दिस थिंग्स बट यस यू हैव टू रीड. यस, दीज आर बुक्स एंड दीज कम्स इन द थिंग्स कैटेगरी. कौन से कैटेगरी में आते हैं? थिंग्स. ओके, सो वी हैव डन 4 things. Narendra Modi will come in the person category. Snake will come in the animal category. Disneyland will come in the place category. And the last books will come in the things category. Done, students? Very good. Now it's your turn for the exercises. Lots of images are given here. What you have to do here? आप सबको क्या करना है? बहुत सारी images यहाँ पे दी हुई है और हमारे 4 कैटेगरी के things किए हुए हैं. Person, things, प्लेसेस, एनिमल्स, और उसके नीचे एक बॉक्सेस में 1 2 3 करके बॉक्सेस बने हुए हैं. आपको क्या करना है? हम क्या करेंगे? पहले इमेज को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो 4 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में आते हैं. एंड देन यू हैव टू राइट द नेम इन द बॉक्स गिवन बिलो. ओके, सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. सी द फर्स्ट इमेज. किसकी इमेज दिख रही है? यस, द पर्सन विद अ व्हाइट कोट. इट्स अ डॉक्टर. डॉक्टर क्या होते हैं? यस, इज द पर्सन. सो डॉक्टर विल कम इन द पर्सन कैटेगरी. तो 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? यस, वी विल राइट डॉक्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट डॉक्टर. आप सब भी हमारे साथ लिख सकते हो इन योर नोटबुक. आप जो भी नोटबुक लेके बैठे हो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 1 नंबर सॉल्व कर लिया. द 1 नंबर इज अ डॉक्टर. सेकेंड इमेज देखते हैं. विल गो डाउन वाइज.
इट्स अ बॉल, गोल राउंड शेप में क्या दिख रहा है आप सबको? बॉल. ओके, नाउ बॉल इज अ प्लेस, सॉरी, बॉल इज अ थिंग फ्रॉम विच वी प्ले. यस, सो बॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो हम लोग बॉल को किस कैटेगरी में डालेंगे? थिंग्स कैटेगरी में. वेरी गुड स्टूडेंट्स. इट विल बी BALL, बॉल. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सेट ऑफ बुक्स. बुक्स दिख रहा है आप सबको? सो हम लोग बुक्स को कहाँ डालेंगे? बुक्स इज ऑल्सो अ थिंग टू रीड. That book is also a non-living thing. Yes, so book will also come in the things category. So we will write the name of the book in the box number 2. Done. Move on to the next. The girl, देखो यहाँ पे फोर्थ इमेज में एक गर्ल है जो गाना गा रही है. She is a singer. Yes, so singer is a person who sings beautiful songs. Yes, she will come in the person category. So we will write in the person category box number 2, singer. आप सबके आंसर्स राइट हो रहे हैं ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स. सिंगर विल कम इन दी पर्सन कैटेगरी. नेक्स्ट, द पर देखो कौन सा एक एनिमल है जैसे करके हाई कर रहा है हमें. हु इज दैट एनिमल? यस, एनिमल इज मंकी. मंकी कम्स इन दी एनिमल कैटेगरी. तो चलो हम लोग एनिमल्स का कौन सा कैटेगरी है? फोर्थ कैटेगरी. बॉक्स नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे मंकी. वेरी गुड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पे देखो एक बहुत सारा गार्डन है. गार्डन में हाउस है, उसमें काउज है. ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फार्म. क्या बोलते हैं? फार्म. सो फार्म इज अ प्लेस, ओके, वेयर द फार्मर्स लिव. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो लिव होते हैं, वो रहते हैं. कभी कभी हम लोग भी फार्म में जाते हैं ना. Okay, so farm will come in the place category. So we will write the word farm in the place category, box number 1. Okay, move on to the next is a beach. यहाँ पे देखो एक बीच की फोटो बनी हुई है जहाँ पे सब रिलैक्स होने जाते हैं, है ना. So beach is a place where you visit. So beach will come in the place category. So we will write the beach word in box number 2. BEACH, beach. Move on to the next is a, देखो एक छोटी सी एनिमल, कौन है वो? Cat. Yes, so cat will come in the animal category, box number 2. Again, CAT, cat. Move on to the next. Tabrik, tabrik, tabrik. Who's that? Yes, that is a horse. Horse will come in the animal category, box number 3. वेरी गुड स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स जिसके सारे आंसर्स राइट हो रहे हैं, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एक छोटा सा 4 legs का थिंग क्या है? यस, दैट इज कॉल्ड अ टेबल. सो टेबल को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? बोलो. यस, इट विल कम इन दी थिंग्स कैटेगरी. थिंग्स, बॉक्स नंबर 3. इट्स अ टेबल. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पे देखो एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई होके जा रहा है. वेयर इज द प्लेस वेयर द एरोप्लेन लैंड्स, अराइव्स एंड डिपार्ट्स? यस, इट्स कॉल्ड अ एयरपोर्ट. ओके, सो एयरपोर्ट इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स अराइव, डिपार्ट्स. हमें कहीं प्लेन में बैठ के जाना होता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? एयरपोर्ट. यस, सो एयरपोर्ट इज अ प्लेस. इट विल कम इन द प्लेस कैटेगरी, बॉक्स नंबर 3. AIRPORT, एयरपोर्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. लास्ट इमेज किसकी इमेज है? यस, टीचर. सो टीचर इज अ पर्सन हु टीचेस यू. सो टीचर विल कम इन द पर्सन कैटेगरी, बॉक्स नंबर 3. TEACHER, टीचर. ओके, सो स्टूडेंट्स जिसके सारे आंसर्स राइट हुए ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. ओके, सो जिसके आंसर्स रॉन्ग हुए, डोंट बी अपसेट. हम लोग दूसरे क्लास में और भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे. और आप लोगों के लिए एक बेनिफिट भी है, आप लोग घर पे बैठ के भी अलग अलग अपने जहाँ पे भी आप बैठे हो, बैठ के अपने आजू बाजू देखो क्या है. आपको मम्मा दिख रही है, सोचो मम्मा, आप तो पर्सन हो, यू आर अ नाउन, आप पर्सन कैटेगरी में आते हो. फिर देखो कि क्या दिख रहा है आपको? टेलीविजन. ये तो टेलीविजन है, टेलीविजन विल कम इन दी थिंग्स कैटेगरी. फिर और देखो और क्या क्या दिख रहा है आपको? आपको घर में कोई ना कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो दिख ही जाते हैं ऑफ कोर्स. ओके, एंट्स तो दिखती ही है. ओके, सो एंट्स को देखो, हाँ ये तो एंट्स है, एंट विल कम इन द एनिमल कैटेगरी. और थिंग तो बहुत सारा, प्लेस,
यस, आप घर में बैठ के, आपको बिल्डिंग में नीचे गार्डन होता है तो गार्डन भी दिखता है ना आपको, सो गार्डन, ऐसे करके भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो 4 कैटेगरीज, पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल. एंड द सेकंड वे टू प्रैक्टिस द थिंग्स आर, आप सबको ABCD भी आती होगी. रैंडमली टेक एनी लेटर, एज इफ मैंने ले लिया M. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको M लेटर से 4 चीज बतानी है. नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेसेस एंड नेम ऑफ एनिमल. सो लेट्स स्टार्ट. चलो, अगर मैं M लेटर से चालू करूँ तो नेम ऑफ पर्सन में M कौन आती है? मदर. यस, मदर इज इन फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम M. दैट इज अ that will come in the person category. Next is thing. M से thing क्या आता है? सोचो सोचो. Yes, mango. Again, mango is the king of fruits. Mango will come in the things category. Next is places. M से place क्या होता है? Mumbai. Yes, Mumbai is a city. Mumbai will come in the place category. And the last is animal. M for monkey. Yes. So animal. So इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करोगे. और देखना A to Z तक जब आप सारे वर्ड्स लिख लोगे ना, देन यू विल सरप्राइज टू नो कि आपको इतने सारे नेम्स पता ही थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये सारे नेम्स को क्या बोला जाता है? नाउन्स बोला जाता है. ओके, एट द एंड यू विल बी वेरी हैप्पी और आपको पता चलेगा कि आप तो नाउन ऐसे ही सीख गए. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. नाउन्स इज वेरी सिंपल. नाउन्स इज अ नेम of 4 things, 4 categories: person, place, animal and things. Okay students, so see you in the next time in the next video. Be prepared, stay safe, stay happy. Bye everyone.